The Department of Science and Humanities plays an important part in initiating the budding and hopeful youngsters into the world of engineering. The basic subjects of English, physics, chemistry, and built on a strong and excellent IT infrastructure, an accomplished faculty and a strong industry backing from Infosys, IBM, TCS, Novell, Wipro and Sun Solaris, the departments of Computer Science and Knowledge, the IBM Center of Excellence Lab, the Sun Solaris Lab, the Red Hat certification. With well-equipped labs, the Department of Electronics and Communication Engineering focuses on providing quality industry-oriented education. A specialized research and development lab provides students the appropriate infrastructure to experiment and innovate. Thoroughness in the theory of analog and digital electronics and a firm grounding in microwave techniques along with attachment with industry make the students confident in handling practical electronic systems. Accredited by the National Board of Accreditation, the Department of Electrical Engineering grooms future scientists and technicians. Administered by a group of skilled faculty members, here emphasis is laid on research orientation. Also accredited by the NBA, the Department of Mechanical Engineering has more than 150 lakhs worth of equipment and is counted amongst the finest departments in the region. It has created a conducive and healthy environment for teaching and learning. Making good use of audio and visual aids, it puts premium on developing while the boys and girls hostels are also located within the campus. A home away from home, the SCIT campus provides students a warm, comforting and a well-equipped living and learning environment. A tiny world of its own, the campus makes a perfect home for any student. The hostels provide well-maintained, clean and comfortable single and double bedrooms. The girls and boys hostel are separate and have their independent messes, gyms and recreation facilities. नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जीवन में जब हम कोई मुश्किल काम अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे निभा लेते हैं तो बड़ी ऊंचाइयों को हम हासिल हो जाते हैं। तो बात हम आज के प्रोग्राम में करेंगे करियर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आमतौर पर ये मानते हैं कि मुश्किल ब्रांच, एक टफ ब्रांच है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस टफनेस को कितनी ईज़ के साथ हम निभा सकते हैं, इस बात को इस प्रोग्राम में जानेंगे। और हम स्वागत कर रहे हैं आज के एक्सपर्ट्स प्रोफेसर एन.के. बांठिया साहब का, जो वर्तमान में विभाग अध्यक्ष हैं स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और पूर्व में NITTR भोपाल यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च में एज अ हेड और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम स्वागत कर रहे हैं अपने दोस्तों का जो इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेज में स्टडीज़ कर रहे हैं। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की, उसके बाद में आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेज हैं और बच्चा ये इस दोराहे पर खड़ा होता है कि मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और जैसा अक्सर हम करते हैं कि हमारे पड़ोसी ने ये ब्रांच ली थी, उसका करियर अच्छा बन गया है, तो इस तरह की दुविधा लोगों के मन में रहती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जाने कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है तो उन्हें मदद मिलेगी। देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वैसे तो एवरग्रीन ब्रांच है। जब से मनुष्य पैदा हुआ शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग
उसके जड़ के साथ ही पैदा हुई। जी। स्टोन एज आई, आयरन एज आई, सब एज आई, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी इस फॉर्म में न हो जैसे आज है, लेकिन जब भी आदमी इनोवेट करता रहा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। अगर हम पूर्व सभ्यता में जाएं तो आज भी हमारे पास में आयरन पिलर है जी। जिसका मटेरियल आज तक भी लोगों को पता नहीं चल पाया है। तो जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच तो एवरग्रीन ब्रांच है, कभी ख़त्म नहीं होगी। व्हील का इनोवेशन हुआ। हाँ, व्हील का इनोवेशन हुआ, कुएं से जो है पानी खींचने का इनोवेशन हुआ, तो ये चलती रहेगी। अब जब इसको एक ब्रांच के तरह से, एक डिसिप्लिन की तरह से सोचते हैं, तो आज के संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हम कहते हैं डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस है, ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के चीज़ें जो हम कर सकते हैं मशीन्स के बारे में, इसको हम लोग आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये बात तो बहुत क्लियर हुई कि सुबह उठने से लेकर रात तक आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही इम्पैक्ट है। चाहे आप टूथब्रश को ले लें, या आप बेड जिस पर सोते हैं, या इवन मोबाइल फ़ोन और गैजेट्स जो आप यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग, उनकी कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग जिन मशीन्स से बनी हुई होती है, दिस ऑल इज़ अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये एक एवरग्रीन ब्रांच है और इसमें एक पुख्ता करियर बनेगा। जैसा कि हम आप देख सकते हैं सर, जैसी मेरी जानकारी है आपकी उम्र लगभग 75 वर्ष है और आज भी आप थोड़ी ज़्यादा है। जी जी जी। और आज इस उम्र में भी आप इस कदर काम करते रहते हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं, उदाहरण हमारे सामने ही है कि व्यक्ति एवरग्रीन इसमें हो जाता है। जी। अगला सवाल आता है कि 12वीं कक्षा के बाद में जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये ऑप्ट करते हैं कि आईआईटी और दूसरी स्टेट लेवल की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अपियर होने के बाद इंजीनियरिंग में ऑप्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो उस विषय में आप एक बार जानकारी दें कि किस तरह से आईआईटी का चयन करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस आईआईटी में बेहतर पढ़ाई है? देखिए, आईआईटी सभी जगह अच्छे हैं, पुराने आईआईटीज़ हैं। आईआईटी जैसा आपको पता होगा शायद आईआईटी खड़गपुर सबसे पहले हुआ, उसके बाद 4 आईआईटी बने, यानी 3 कहूँगा, उस चौथा बाद में बना। आईआईटी बॉम्बे आया, वो रशियन हेल्प से बना। आईआईटी मद्रास आया, वो जर्मन हेल्प से बना। और आईआईटी कानपुर हुआ जो अमेरिकन हेल्प से बना। आईआईटी खड़गपुर तो पहले ही था जी। अब दूसरे आईआईटी अब आए। आईआईटी दिल्ली ब्रिटिश हेल्प से बना, वो बाद में आया। तो अगर हम सोचें कि हमारे पुराने किसी आईआईटी में हमारा एडमिशन हो जाए जिसका नाम है, तो सबसे अच्छा है। लेकिन सारे आईआईटी अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राजस्थान में भी आईआईटी है, लेकिन क्योंकि समय लगता अभी है, शुरुआत के दौर में है। हाँ, जी जी। समय लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, फैकल्टी लेने के लिए, तो थोड़ा सा चयन करते वक्त प्रोफेसर भाटिया साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, खास तौर से वो ध्यान रखें कि अगर किसी पुराने आईआईटी का चयन करेंगे तो वो एक बेहतर डिसीजन साबित होगा। अब मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उनसे डायरेक्टली बात की जाए। अपना नाम बताते हुए संक्षिप्त में सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम अनीशा सोनी है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे मैं अभी आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहती हूँ, तो सबसे बेस्ट आईआईटी या फिर एमएनआईटी कौन सा होगा मेरे लिए? एनआईटीज़ भी एक दूसरा ऑप्शन देखिए, अवेलेबल है। एनआईटीज़ जो हैं ये सेकेंड लाइन बनी, ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, रीजन के लिए बने थे। उनका नाम बन गया एनआईटीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बन गया। एक थोड़ा सा शायद ध्यान रखें जब भी आप चयन करें किसी भी आईआईटी या किसी एनआईटीज़ का, तो उसका फैकल्टी का कंपोजिशन देख लें। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में जा रहे हैं तो आप देख लें कि उसमें फैकल्टीज़ के क्या पेपर पब्लिश हुए हैं, किस ब्रांच में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो देख लें, यानी कितना काम वहाँ हो रहा है, उनकी लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ के बारे में देख लें। पुराने आईआईटीज़ जो एस्टैब्लिश्ड हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कल्चर के बारे में भी अगर जान लें तो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है किसी एनआईटी और किसी आईआईटी का कल्चर ऐसा हो या बड़ा क्लोज टाइप हो, तो उसको न चूज़ करें। या ओपन टाइप का कल्चर हो
तो उसको चूज़ करें। यानी इस तरह की बातें आजकल इंटरनेट जब अवेलेबल है तो बहुत ही सुविधाजनक है कि हम मालूम कर सकते हैं कि क्या हो रहा है किस जगह पर। तो मेरी समझ से चयन करते वक्त इस बात का कर लें आप, तो शायद आप बेटर चॉइस करेंगी। जी, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इंटरनेट पर आप जाएं, कॉलेज की वेबसाइट्स देखें, वहाँ के फैकल्टी का प्रोफाइल देखें, और वर्चुअल टूर की सुविधा भी आजकल अवेलेबल है। आप हर इंस्टीट्यूशन अपनी लेबोरेटरीज़ की वीडियोस बना करके वहाँ पोस्ट करते हैं, उन सुविधा का लाभ लें। और आसपास अगर जाना कहीं संभव हो तो आप एक दो इंस्टीट्यूशन ज़रूर विजिट करें। जब हमारे अल्टीमेटली हमारे करियर और जीवन का सवाल है, तो इसके लिए ज़रूर बेहतर होगा कि आप एक दो इंस्टीट्यूशंस में पर्सनली जाकर विजिट कर लें, अपने बेसिक होमवर्क करने के बाद, वेबसाइट्स से डेटा कलेक्ट करने के बाद में। जी, अगला सवाल हम। हेलो सर, मेरा नाम रंजन कुमार है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल है कि पढ़ाई करते दौरान हमें किन बातों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को मैकेनिकल ब्रांच से ज़्यादा अच्छे से जोड़ सके और अपने लाइफ को और अच्छा बना सके। जी, बीज होना काफ़ी नहीं है, बीज की बाद में जो उसकी नरिशमेंट है, जिस तरह से केयर करनी है, वो बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब काफ़ी जागरूक विद्यार्थी हैं, अक्सर सोचते हैं एडमिशन हो गया अब तो बन ही जाएंगे। जी, देखिए, एडमिशन होना एक बात है, परफॉर्म करना दूसरी बात है। एक किसी भी ब्रांच में हो या किसी भी चीज़ में हो, लगन से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, पहले दिन से अगर आप पढ़ाई करते हैं और ध्यान देते हैं क्लासेस में क्या हो रहा है, लेबोरेटरीज में क्या हो रहा है, काम करने की कोशिश करते हैं, तो आदमी का फेल्यूर नहीं होता है, आदमी सक्सेस ही होती है। सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम काम करें, देखें, पढ़ें, लिखें। पढ़ाई आपका अगर सब्जेक्ट है जिसमें आप करना है तो पहले ही दिन से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो रास्ते में रुक जाएंगे, फिर मुश्किल होगी, कैरियर में भी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अपना ध्यान लगाएं। मुश्किल होती है तो आपके टीचर्स हैं ना, उनसे पूछिए। कोई भी टीचर अगर वो रियली टीचर है तो कभी भी आपकी डिफ़िकल्टी के सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी कभी भी हेजिटेट नहीं करेगा, हरदम हेल्प करेगा। जी, तो बड़े साहब ने बहुत अच्छी बात की। आजकल विद्यार्थियों में एक चलन बन गया है कि अंत में पढ़ लेंगे, पासबुक से पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट्स, शॉर्टकट की एक एटीट्यूड आजकल डेवलप हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको पुख्ता सक्सेस चाहिए, अपने जीवन में आगे तक जाना चाहते हैं, तो पहला मंत्र है लगन से करें, पहले दिन से पूरी तैयारी करें। जो मेंटल फ्रेम आपका प्रिपरेशन लीव में होता है, परीक्षा के एक हफ्ते पहले होता है, वो डे 1 से वो फ्रेम लेके चलें। और अल्टीमेटली आपको ये जो यात्रा है इसमें 4 या 5 साल मेहनत करनी है। कहावत है, आज मेहनत करो जीवन में खुशी रहो, या आज मौज मस्ती कर लो और जीवन भर मेहनत करो। चॉइस आपकी है, तो शुरुआत से ही मेहनत करनी चाहिए और देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगला सवाल। हेलो सर, माय नेम इज़ सरिता चौधरी। मैं ये क्वेश्चन अपनी छोटी बहन के लिए पूछना चाहती हूँ। वो मैकेनिकल इंजन कर रही है, तो उसके लिए एज ए फीमेल मैकेनिकल में क्या स्कोप हो सकता है? जी, देखिए, ये मेल फीमेल में स्कोप मेरे हिसाब से सबके लिए स्कोप है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ये कहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है थोड़ी सी क्लिष्ट ब्रांच है, लड़कियों के लिए नहीं है। अगर मैं अपना ही उदाहरण लूँ तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 15.5 साल की उम्र में चला गया था। अब बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत होती थी। आज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से उस समय की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा क्लिष्ट थी। वर्कशॉप में हमको पहले ही दिन से चिपिंग का टास्क दे दिया था, चिपिंग करनी है। यानी ये हथौड़ा हाथ में होता था और नीचे देखना होता था। हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते थे कि ऐसा मत करो, यहाँ मत देखो, नीचे देखो, लेकिन देखना तो दिखता तो यही था। और यहाँ पे जब हम कॉलेज से लौट के आते थे तो ये सब खून से लप्त होता था। तो अब तो ये सब खत्म है, चिपिंग तो हट गई। अब क्यों हटी मैं नहीं जानता। हमने तो कष्ट झेला है। तो वर्तमान परिस्थिति में अब इस स्थिति में हमारे साथ लड़कियां नहीं थी, आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं। और मेरे हिसाब से इस तरह की मुश्किलें नहीं हैं जैसा आप बयान करती हैं। ये ज़रूर है कि जब भी हम किसी उसमें जाते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि वहाँ लड़कियां हैं कि नहीं,
कभी कभी अकेली लड़की भी होती है, लेकिन आजकल की लड़कियां स्मार्ट होती है। जी वो- जी। और सरिता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आटा गूंदने और कपड़े निचोड़ने में भी ताकत लगती है, और मशीन जबकि आप बटन से चला लेते हैं। तो ये मिथ अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इतनी एडवांस मशीन्स आ चुकी है, प्रोसेस इतने सिंप्लीफाई हो चुके हैं, उसमें फिज़िकल स्टेमिना, फिज़िकल एग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अभी आज के दौर में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस फेज़ में है, डिज़ाइनिंग इतनी प्रोमिनेंट है, डिज़ाइनिंग में फीमेल क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इवन इंडस्ट्री में भी अगर हम जाते हैं तो एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के डेस्क पे काम आपको करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है। फील्ड में या लेबर्स को हैंडल करना वाली जो बात अक्सर जिससे हेजिटेशन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बल्कि कहूँगा भट्टे साहब कि आज के दौर में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो इंडस्ट्री में उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। उनके लिए ख़ास तौर की जॉब्स सुरक्षित हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। उन्हें जस्ट अप्लाई करना है और उनका एट्रीब्यूट है तो उन्हें डेफिनेटली उसमें बिल्कुल सही, आप सिलेक्शन बिल्कुल होगा। सही कह रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कर भी रही है आजकल, क्योंकि सब अपना परसेंटेज, फीमेल परसेंटेज बढ़ाना भी चाहती हैं, और उनको अगर सूटेबल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो ज़रूर ये प्रेफर करती हैं। जी, उम्मीद है ये बात प्रोफेसर साहब की आपके जीवन में और आपकी सिस्टर के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरा सवाल ये है कि कंपनियां जैसे कॉलेजेस विजिट करती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी पढ़ने में तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्लेसमेंट नहीं ले पाते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो पढ़ाई के साथ साथ और किन किन बातों पर ध्यान दें जिससे कि वो कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा कर पाए और उन्हें आसानी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली डिग्री, रादर एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्री। देखिए, एक तो ये प्लेसमेंट ज़रा थोड़ा सा मेरी समझ से मिथ है। जी, मिथ है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक मिथ है, क्योंकि ये टर्म मेरे हिसाब से MBA और कंप्यूटर ऐसी ब्रांचेस के संदर्भ में आई हैं जहां एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लेने होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हर जगह जगह है, और इसलिए आप समझे कि रियल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब के लिए कोई कॉलेज में आएगा, ये मिथ है मेरे हिसाब से। लेकिन जब भी कोई इस तरह के प्लेसमेंट के ड्राइव्स होते हैं, आप देखिएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मुखर हो रही है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी ही पड़ेगी, और कम्युनिकेशन स्किल्स से इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है और हिंदी की भी होती है। जिसकी हिंदी, मेरी सोच है कि हिंदी जिसकी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी अगर वो मेहनत करेगा। मैं चाहूँगा दोस्तों इस बात पर तालियां बजनी चाहिए कि जिसकी हिंदी भाषा अच्छी है उसकी दूसरी भाषाएं भी, यानी कि मातृभाषा को आपने मन से लगाया है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े बुजुर्ग का यही एक रोल होता है कि कठिन बात सरल शब्दों में कह दें और एक समाज को एक नई दिशा मिल जाए। मैं अपने सारे दोस्तों से कहूँगा अपनी मातृभाषा से प्यार करें और उसे अच्छे तरीके से अपने आत्मसात करें, दूसरी भाषा स्वतः ही आ जाएंगी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप अपनी बात को, अपने आइडिया को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो दोस्त, आप अपने आइडिया को दूसरे तक पहुंच पाएँ, चाहे वो ड्राइंग के थ्रू हो, राइटिंग के थ्रू हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, ये सारे आपको सीखने बहुत ज़रूरी हैं। जो कि ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हर बात करिकुलम में लिखे तभी आप सीखें। 4 साल की यात्रा में जब जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं, क्योंकि हम देख कर सीखते हैं, अपने कॉलेज में होने वाली हर एक्टिविटी को देखें, क्या हो रहा है वो आपके सारे सामने एक सीन है। जैसे एक फिल्म आप जब देखते हैं तो एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से ना देखें, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, फिल्म के निर्माण से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में जनरल बातें भी बहुत सारी पूछते हैं, हॉबी से रिलेटेड बातें पूछते हैं। तो आप अपनी बात को ठीक से रखना अगर आपको आता है तो निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी कंपनी में जो आपके मन को अच्छी लगती है जॉब मिल ही जाएगी। अगला सवाल। Hello sir. Sir, I am Jaspreet Singh and I am pursuing my bachelor's in mechanical engineering, sir. Sir, I want to ask that if I want to pursue my master's abroad, sir, what factors should I work upon so that I can easily opt for any good universities? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका लेवल क्या है। कोई भी यूनिवर्सिटी जब देखती है अब्रॉड वाली तो लेवल देखती है। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है
तब आप MIT USA की सोचिए, इंपीरियल कॉलेज लंदन का सोचिए। अगर आपका लेवल थोड़ा सा लोअर है तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में सोचिए। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे कि मैं कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चला जाऊंगा या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चला जाऊंगा, ऐसा मत सोचिए। आप देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें मैं फिट हो सकता हूँ, और मेरे समझ से अगर आप ये करें, आपका सिलेक्शन अच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेनी होती है अपने टीचर से। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको अच्छा ही रिकमेंड करेंगे। अच्छा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा घुमा के लिखेंगे। आपका क्लास में क्या है, स्तर रहा है, आप टॉप में हैं तो टॉप लिखेंगे, आप 50% के बिलो हैं तो मुश्किल है। यानी ये बातें बिल्कुल, जो टीचर का रिकमेंडेशन होता है, इसको बहुत कुछ देखा जाता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। आप अच्छा स्कोर लीजिए, अच्छे मार्क लाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंपीरियल कॉलेज लंदन में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MIT में मिल जाएगा और असिस्टेंटशिप भी मिल जाएगी। जी, तो सबसे पहली आवश्यकता है अपने आप को ठीक से, ईमानदारी से असेस करना कि आपका स्केल कहाँ पर आता है। उसके बाद टीचर्स की रिकमेंडेशन और अच्छा स्कोर, जैसा कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जामिनेशन है, उसमें आपने अच्छा स्कोर हासिल किया है और उसके बाद सही यूनिवर्सिटी का चयन किया है तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी और एडमिशन भी आसानी से मिल सकता है। उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब की ये राय आपके जीवन में काम आएगी। अगला सवाल। Hello sir, my name is Vipul and I want to ask while doing the BTech mechanical engineering, what factors should the student keep in mind while preparing for the GATE exam? जी, आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, गेट एग्जामिनेशन आजकल एक रास्ता हो गया, गेट ही है, वो जी, जी, दरवाज़ा ही है, दरवाज़ा ही है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का और बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज के, पब्लिक सेक्टर के ख़ास तौर से। और प्राइवेट सेक्टर वाले भी पूछने लग गए हैं कि अगर आपने कहीं लिख दिया कि गेट में मैं अपियर हुआ हूँ तो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में क्या है आपका गेट स्कोर। तो या तो आप लिखिए मत, अगर स्कोर ख़राब आया और लिखते हैं तो फिर आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। अब प्रिपरेशन की जब बात आती है तो आप देखिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप अगर हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गेट का पेपर क्या आता है, आप देखेंगे कि उसमें मैथमेटिक्स आती है। यानी फर्स्ट ईयर से ही आपकी प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए। यानी मैथमेटिक्स आप भूल नहीं सकते। सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके सब्जेक्ट्स किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर देखें तो बड़ी फंडामेंटल इंजीनियरिंग साइंसेस के कोर्सेज होते हैं और वो इंजीनियरिंग साइंसेस के कोर्सेज पे बहुत सारे सवाल आते हैं। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ, ये सारे इंजीनियरिंग साइंसेस हैं। इन इंजीनियरिंग साइंसेस के बहुत सवाल आते हैं, 30-40% पेपर आता है। तो सेकेंड ईयर बड़ा क्रिटिकल ईयर होता है। अगर आपने तैयारी वहाँ चालू नहीं की, बड़ी मुश्किल होती है। बाद में सोचता है एक दिन में फ्लूइड मैकेनिक्स सीख लूँगा, बड़ी मुश्किल होती है। तो सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से अगर ध्यान दें, टीचर्स अगर जो पढ़ाते हैं उसको रिवीजन कर लें तो गेट का दरवाज़ा पार करना मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। ठीक है, बाद में आपको रिवीजन करने होते हैं, कापियाँ बना के। होता क्या है कि लड़का कापी नहीं बनाता है भाई, जो नोट्स होते हैं टीचर के वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। मेरे पास मेरे पुराने प्रोफेसर्स के नोट्स आज भी पड़े हैं, मेरे को फेंकते हुए भी दर्द लग रहा है कि मैं कैसे फेंकूं मेरे प्रोफेसर्स के नोट्स, यानी दर्द हो रहा है। दोस्तों, बहुत बेहतरीन बात कही कि आपने अगर कोई चीज़ मेहनत से की है तो उसे फेंकने में आपको दर्द आएगा। इतने वर्ष हो गए, पढ़ाई ख़त्म हो गई, इतनी लंबी सेवाएं आपने दे दी, स्टिल वो धरोहर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये 100 मीटर रेस की तरह है, यानी कि हर सेकंड, हर स्टेप काउंट कर रहा है। फर्स्ट ईयर में आपने जो प्रवेश लिया, वो जो सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि मैथमेटिक्स 1 इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स 2 आता है, फिर सेकंड ईयर में जो ब्रांच के आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि प्रवेश प्रक्रिया 4 साल बाद होगी। गेट की एग्जामिनेशन आपको फाइनल ईयर में आपको अपीयर जब होना है, तब आपका बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट
काम आ रहा है। तो एक एक बूंद से वो घड़ा बन रहा है, इसलिए लगन और सिंसेरिटी पहली ज़रूरत है इस ब्रांच की। अब बात समझ में आ रही है कि इस ब्रांच को अक्सर लोग टफ ब्रांच क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको सिंसियर चारों साल बने रहना है, और फिर सिंसेरिटी आपकी पर्सनैलिटी और आपका एट्रीब्यूट है, पूरे जीवन में आप सिंसियर रहते हैं, इसीलिए इसको एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है। अगला सवाल। Hello, sir. Sir, my name is Nitesh Mudgal. Sir, my question is that what's the scope for a mechanical engineer in Indian Defence Services? जी, देखिए, मैं इंडियन डिफेंस सर्विसेज के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन देखता हूँ कि मेरे पास लोग छुट्टी लेने आते हैं 6-6, 7-7 दिन की, कहते हैं कि मेरे को जाना है, मेरा इंटरव्यू है, मेरा ये है। यानी देखिए, स्कोप है तभी तो वो छुट्टी लेने मेरे पास आता है। जी जी, मेरे को नहीं मालूम कि उसका कैसे सिलेक्शन हुआ, वहाँ गया, कई बार वो लौट आता है 2 दिन बाद, कई बार वो 3 दिन रुकता है, कई बार वो 4 दिन रुकता है। यानी कॉलेजेस में डिफेंस के लोग आते हैं, वो बताते हैं डिफेंस के बारे में, और उस बताने के समय में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, अप्लाई करते हैं, और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो। आर्मी के लिए जो एटीट्यूड होता है वो I can do attitude होता है। वही जज करते हैं वो लोग, और कुछ नहीं जज करते हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं जिसमें आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, पुरानी बात है, एक्सीडेंट हो गया था, आगे 3-4 दिन अपियर भी नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया था। यानी उनने पहले 2-3 दिन में ही जज कर लिया था कि ये कैंडिडेट डिफेंस सर्विसेज के लायक है। यानी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पर, वो आपको हर मिनट वॉच करते हैं, हर मिनट वॉच करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कंपनी में कैसे हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं। इसलिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा कॉलेज में कि आप लीडरशिप क्वालिटी, साथ में रहने की क्वालिटी, ये सब करें। जी, नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत की हम तकलीफ बात आएगी। करते हैं तो डिफेंस से अच्छा और बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां टीम वर्क, जज्बे के साथ काम करना, और साथ साथ आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा आपने सवाल पूछा कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सेपरेट सेल है इंजीनियरिंग डिवीजन की खास तौर से, और वहाँ आपको सीमा पर लड़ाई करने नहीं जाना है, वहाँ आपको एमिनेशन की तैयारी करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, उनकी मेंटेनेंस है, वो काम करना होता है। लाइन 2 में आप रहते हैं, लेकिन रैंक आपको वो सारी मिलती हैं जो कर्नल, लेफ्टिनेंट, वो सारा लाभ आपको मिलता है। तो फौज में या एयरफोर्स में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर के बतौर अगर आप सेवाएं देते हैं, तो मैं कहूँगा इससे अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। एक रॉयल लाइफ आपको मिलती है, अच्छी सैलरी और वेजेस हैं, पर्क्स हैं, और सिस्टमेटिक लाइफ है, और एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम करने का आपको मौका मिलता है। साथ साथ देश की सेवा तो आप कर रहे हैं। मैं आप जैसे तमाम दोस्तों को सलाम करता हूँ कि आपने इस बारे में सोचा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में मैं देश की सेवा फौज से जोड़ के करूँ। जी, अगला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम नंद किशोर गर्ग है। सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। तो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सर मैं अगर MBA करना चाहता हूँ, तो जो भी नॉलेज मैंने गेन की है सर अपने गोल्डन ईयर्स, जो 4 गोल्डन ईयर्स हैं सर, वो मेरे लिए आगे क्या काम आएगी अगर मैं MBA करूँ सर बीटेक के बाद? तो सर बहुत ही अच्छा सुंदर सा प्रश्न है। देखिए, MBA अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और IIM वगैरह देखें, अगर टॉप इंस्टीट्यूशंस देखें, तो आपको लगेगा कि एडमिशन्स किसका हो रहा है, एडमिशन्स किनका हो रहा है। ज़्यादा एडमिशन्स इंजीनियर्स के हो रहे हैं। आजकल वो इंजीनियर्स के एडमिशन को कम करने के लिए कई फार्मूले लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल कई सही कह रहे हैं। फार्मूले लगा रहे हैं जिससे इंजीनियर्स का एडमिशन कम हो जाए। तो यानी एडमिशन अगर आपने अच्छी तरीके से IIM वगैरह के लिए प्रिपरेशन की है और दूसरे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिपरेशन की है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अच्छे इंस्टीट्यूशन से अगर आपने MBA की है तो निश्चित तौर पे आपके सामने बहुत एवेन्यू है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट डिग्री बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और आप देखेंगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। हो सकता है सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वहाँ पर भी जो मैनेजमेंट की जो पोस्ट होती हैं
वो मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रेफर किए जाते हैं। उसकी खास वजह ये है कि एक तो हाथ से काम करने की आदत होती है, टीम वर्क में काम करने की आदत होती है, लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है जो एक अच्छे मैनेजर के लिए ज़रूरी है, अच्छे प्लानर के लिए ज़रूरी है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन दूसरे इंजीनियरिंग प्लस एमबीए के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा एक्सेप्टेड है, ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। जी, उम्मीद है आपको ये सलाह काम आएगी। अगला सवाल। Hello sir, my name is Mohammad Sultan Adim. I am a mechanical engineering student. Sir, I want to pursue my further career in the field of mechanical product design. So sir, how I can improve my design skills and how I can commercialize the products to the market जी, level? आपका नाम बताएं। मोहम्मद सुल्तान अदीम। मोहम्मद सुल्तान, आपने बहुत सही मौके पर ये बात कही। मैं बहुत बात सोच ही रहा था कि स्किल इंडिया की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, मेक इन इंडिया की बात करूं, तो बात शुरू होगी इनोवेशन से कि आप एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है उसमें क्या इनोवेशन करें और उसे एक कमर्शियल तौर पर एक बड़ी इंडस्ट्री का स्वरूप दे सकें। प्रोफेसर साहब, इस विषय में आपसे उम्मीद करते हैं। देखिए, आज देख रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे ड्राइव्स हो रहे हैं, स्किल इंडिया और जो मेक इन इंडिया, जी, मेक इन इंडिया। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बैंक्स वगैरह और भी जो भी एजेंसीज़ हैं वो लोन देने में वगैरह वगैरह बहुत ही लिबरल हैं इस मामले में। तो आप जो भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, मेरे हिसाब से आप अपने कॉलेज के टाइम में ही उसके बारे में सोचें, ट्राई करें, बनाने की ट्राई करें। और फैसिलिटीज़ होती हैं कॉलेज में, आपके टीचर्स होते हैं कॉलेज में जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके डिज़ाइन को देखने में और उसमें सजेस्ट करने में कि भाई इसमें ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और आपको एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के बारे में भी बताने के लिए कि मार्केट के लिए कैसे करें। तो आप कॉलेज के टाइम से ही अगर ये चालू करें तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। आज का समय है कि हम नौकरी पाने की लालसा छोड़ करके अपना खुद का कोई व्यवसाय करें। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ की जीडीपी में, वहाँ की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान स्मॉल और मीडियम स्किल इंडस्ट्रीज़ का है। माननीय प्रधानमंत्री की जो पहल है स्किल इंडिया की और मेक इन इंडिया की, उसके साथ जुड़ने का, उन नीतियों का, उन स्कीम्स का लाभ लेने का सही समय है। और उसका सबसे शुरुआती पॉइंट है, आप अपनी स्टडीज़ के दरमियान कोई प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करें, उसमें कुछ इनोवेशन करें, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आएँ। भारत सरकार के DIC का ऑफिस है, एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट उपलब्ध है, हर कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स है। वहाँ के टीचर से, वहाँ के फैकल्टी इंचार्जेस से आप मिलें, उनसे राय लें, उस प्रोडक्ट को किस तरह से और पॉलिश कर सकते हैं, किस तरह से कमर्शियल फॉर्म में लॉन्च किया जा सकता है। भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको टेक्निकल नो हाउ के लिए फंड्स प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन दे सकते हैं, इवन प्रोटोटाइप डेवलप करने तक के लिए आपको गवर्नमेंट एजेंसीज फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली DST। अगर आप DST की साइट पर जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर आपको ये सारी सूचनाएं मिल जाएंगी किस तरह आपका प्रोडक्ट एक कमर्शियल फॉर्म में डेवलप किया जा सकता है। दोस्त, आपको बहुत बहुत बधाई, आप इस दिशा में सोच रहे हैं और मैं तमाम अपने दोस्तों से कहूँगा कि आप इस दिशा में सोचें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट्स हैं उन पर जाएं, सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं इसलिए हमने कभी किया नहीं। पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे का दिमाग आप विकसित कर रहे हैं एक इंडिपेंडेंट मैच्योर पर्सन बनाने के लिए। डिग्री का उद्देश्य इसलिए नहीं है कि वो एक नौकरी पा जाएगा, वो अपने आप को ढूंढ सके, अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचान सके, उसका विकास कर सके। ये जगह है इंस्टीट्यूशन की। तो पेरेंट्स अगर इसमें मदद करेंगे, बच्चे को अपने ड्रीम्स ट्रांसफ़र ना करें। सोसाइटी में ये कहा गया है कि नौकरी करना ज़रूरी है, भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। जब अच्छा लगेगा तो उन्नति भी ज़्यादा होगी, व्यक्ति खुश भी ज़्यादा होगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको इस बात के लिए। अगला सवाल। सर नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है। सर मैं गेट एग्ज़ाम के बाद में PSU सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो मेरे को गेट स्कोर के आधार उसका स्कोर क्या रहना चाहिए ताकि मैं PSU सेक्टर अच्छी कंपनी, महारत्न है, भारत रत्न कंपनियाँ, और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मेरा गेट स्कोर कार्ड वैलिड है या नहीं है? जी सर, देखिए गेट स्कोर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे गेट के फॉर्म में ही
उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए हैं जहां अब गेट स्कोर वैलिड है। अभी कुछ दिन पूर्व एनटीपीसी के बारे में आया था, उसके पूर्व बीएचईएल के बारे में आया था। यानी आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां अब गेट स्कोर को मानने लगी है। पहले ये कंपनियां अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया करती थी। उन्होंने भी सोचा कि अब ये गेट जब एग्जिस्ट करता है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें और लड़के का भी टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये एंट्री है, आप ये समझें कि इसके कारण आपको एंट्री मिलेगी, ये दरवाजा ही है उन कंपनियों के लिए, वो आपको एक्सेप्ट करेगी एज ए कैंडिडेट। फिर जो भी अपने टेस्ट लेना हुआ वगैरह वगैरह करेगी। तो आप गेट की साइट पे जाइए, आपको एक लिस्ट मिलेगी कि इन कंपनियों में उनका अभी तक एग्रीमेंट हो चुका है, ये वैलिड है आपका गेट का स्कोर। जी, जैसा हम सभी जानते हैं गेट का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता है। किसी भी आईआईटी एनआईटी में हायर स्टडीज यानी कि एमटेक करने के लिए गेट परीक्षा पास करना ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ जितने पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, भारत सरकार के उपक्रम हैं, उन सभी में नौकरी पाने के लिए अलग से कोई टेस्ट नहीं है। गेट के स्कोर के आधार पर आप अप्लाई करें और उसके बाद में इंटरव्यू का जो प्रोसेस है फेज़ 2, उसमें आप अपीयर हो और आपको अगर स्कोर अच्छा है और आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो निश्चित तौर पर आपको वो जॉब मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, वो भी गेट के स्कोर को वैलिडिटी देती हैं। लेकिन जैसा आपका दूसरा सवाल था कि मैं स्कोर कितना लाऊं, देखिए स्कोर में टॉप करना, वहाँ से गिनती शुरू हो जाती है। अब आपको ये तय करना है कि मैं अपना अटेम्प्ट किस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। तो आप तो अपना अटेम्प्ट 100% ही दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं आधे मन से गेट का एग्जामिनेशन दूँ और कुछ 5,000 का, 6,000 का, 10,000 का स्कोर आ जाए। आप अपना बेस्ट दीजिए। और जैसा आपने शुरुआत में कही थी कि फर्स्ट ईयर सही समय है ये बात तय करने का कि मुझे गेट का एग्जामिनेशन देना है। हम अक्सर थर्ड ईयर के बाद ये तय करते हैं कि मुझे गेट का एग्जामिनेशन देना है, जबकि शुरुआत फर्स्ट ईयर से शुरू हो गई है। तो आप फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स, जब उसमें 30-40% सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, तो वहीं से शुरू करें, पूरी मेहनत से करें, तो निश्चित तौर पर जो आपका उद्देश्य है वो सफल होगा। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमिता है और मैं जानना चाहती हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर बनने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है और क्या चुनौतियाँ हो सकती है उसके सामने? जी, सबसे फेवरेट प्रोफेशन है गर्ल्स के लिए टीचिंग प्रोफेशन, और बहुत अच्छे से पढ़ा भी पाती हैं। ईश्वर ने उनको एक खास योग्यता दी है कि समझाने का काम जो है वो माँ बहुत अच्छे से कर पाती है पिता के बनिस्बत। तो क्लासरूम में जब फीमेल टीचर पढ़ाती है तो पढ़ाई जल्दी समझ में आती है, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल है। देखिए, मैं इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास तो फीमेल और मेल दोनों तरह के टीचर्स होते हैं। जी जी। तो आपका कहना ठीक है, यानी फीमेल टीचर्स होते हैं तो लड़के डिसिप्लिन तो ज़रूर रहते हैं। जी जी। क्योंकि आजकल लोग जो कहते हैं कि लड़के इनडिसिप्लिन हैं, ये हैं, फीमेल टीचर्स के क्लासेस में ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, वेल बिहेव्ड रहते हैं। जी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है सुमिता जी, ये है कि अब ज़माना सिर्फ बीटेक या बैचलर्स डिग्री का नहीं रहा। बिना एमटेक के अब टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री नहीं है, यानी आपको एमटेक तो करना ही पड़ेगा एंट्री के लिए। अच्छे इंस्टीट्यूशन से करती हैं तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिलेगी। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से नहीं करती हैं तो आपको सेकंड क्लास इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनको भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि हमारे यहाँ एमटेक टीचर्स हैं। जी। लेकिन एमटेक सफिशिएंट नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आज पीएचडी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बिना पीएचडी के बिना आगे आदमी नहीं बढ़ सकता। यानी आगे बढ़ना है तो पीएचडी करना ही पड़ेगा। आप स्टैटिक रहना चाहते हैं तो एमटेक तक करें और किसी भी कॉलेज में घुस जाएं, फैकल्टी बन जाएं। लेकिन आगे बढ़ना है, आपको प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, या डायरेक्टर बनना है, तो आपको पहले पीएचडी करनी ही पड़ेगी। आप देखिए
मिनिमम क्वालिफिकेशन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीएचडी है कि नहीं, ये प्रश्न पूछा जाता है एआईसीटी जी, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। हाँ, इवन स्टैट्यूटरी मैं कहूँगा कि आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में अगर आपको लेक्चरर के बतौर ज्वाइन करना है तो शुरुआती क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी है, इवन टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये मान के चलिए कि ये टीचिंग की यात्रा की शुरुआत पीएचडी के बाद होगी। तो आप जैसा सर ने कहा कि आप समझौता करते रहेंगे, फिर अगर आप सिर्फ एमटेक तक की बात सोचेंगे, पीएचडी करना ज़रूरी है। जैसा कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि रिसर्च हमारे यहाँ होनी चाहिए, रिसर्च और पीएचडी एक दूसरे के साथ हाथों हाथ जुड़े हुए हैं। इस विषय पर सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ प्रकाश डालें। देखिए, रिसर्च और पीएचडी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और अगर हम रिसर्च के बारे में सोचें और कम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ रहते हैं हम इस वक्त, तो रिसर्च दो तरह की हो सकती है। एक रिसर्च होती है जो पेपर पब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी जनरली देखा गया है उस रिसर्च में मैथमेटिकल फार्मूलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल चीज़ें होती है, और डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा कम सोचा जाता है, उस रिसर्च की एप्लीकेशन के बारे में कम सोचा जाता है। अब जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि रिसर्च के बारे में, तो मेरे हिसाब से अब ओरिएंटेशन भी रिसर्च में बढ़ना चाहिए, यानी R&D साथ साथ चलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेते हैं और उसमें हम काम करते हैं और उसमें कुछ जो पीएचडी वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर लेते हैं, तो वो रिसर्च वैलिड हो जाती है पीएचडी के लिए। तो प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं वो और पीएचडी की डिग्री दोनों साथ चल सकती हैं। प्योर रिसर्च की जिसकी बात पहले ज़्यादा हुआ करती थी, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला जो एंगल थोड़ा सा मिसिंग होता था, क्योंकि अगर जब कोई एग्जामिनेशन होता था तो ये पूछा जाता था आपने जो काम किया इसकी एप्लीकेशन क्या, तो कैंडिडेट थोड़ा सा घबरा जाता था कि एप्लीकेशन तो शायद दिखती नहीं थी, हिडन तो जरूर होती थी, दिखती नहीं। जी, समय की कुछ कमी है सर। मैं दोस्तों से यही कहूँगा, जो लोग भी रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसको एप्लीकेशन के साथ जोड़ें, न केवल एक डिग्री के बतौर या एक मैथमेटिकल फार्मूला आपने डेवलप किया, जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं होगा उस डिग्री का कोई मकसद सामने नहीं आ पाएगा। उम्मीद है आज हमने इतनी सारी अलग अलग मुद्दों पर जो चर्चाएं की, आपके जीवन में कुछ नया कर पाएंगी। दूरदर्शन का लगातार प्रयास आपके जीवन को दिशा देने का लगातार जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी हमारे स्टूडियो में मौजूद आए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, स्पेशली आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने व्यस्त शेड्यूल में से आपने हम लोगों के साथ समय शेयर किया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।